बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। मैं हूं आपके साथ रिद्धि और आज हम जालंधर के अपाहज आश्रम में आ चुके हैं जहां पर लगा है मेडिकल कैंप। भाई आजकल की बिजी लाइफ में हम इतना बिजी हो गए कि अपने बारे में ही नहीं सोचते, अपने टेस्ट ही नहीं करवाते। हमें लगता है कि हमारी बॉडी एकदम ठीक है, लेकिन कई बार टेस्ट करवाने पर कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आती है। ये हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन ये है कि अगर हम अपने बॉडी का फुल चेकअप करवाएंगे तो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। तो आज जालंधर में संडे वाले दिन, ठीक है, संडे को मेडिकल कैंप लगा है ताकि आप भी बिजी ना हो। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस मेडिकल कैंप में क्या होने वाला है, क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं अंदर। तो हमारे साथ अपाहज आश्रम के चेयरमैन तरसीम जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। सर आज जो मेडिकल कैंप लगाया गया हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇਹ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਿਸਟ ਔਰ ਆਰਥੋ ਦੇ ਕਾਰਡਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੀਐਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥੋ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਐਮਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਹੈ। ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਪੂਰ ਵਿਕਲਾਂਗ ਸਹਾਇਤਾ ਟਰਸਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਐਕੋਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡੈਂਟਲ, ਐਕਸਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 3000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਸ ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਫੋਰਟਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਰਟਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੇਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦਾ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨਸ, ਨਾਟ ਏ ਗਰੀਬ ਬਟ ਏ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ। ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ 'ਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। सर इस मेडिकल कैंप में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥੋ ਦੇ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਐਕਸਰੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ। तो हमारे साथ हार्ट स्पेशलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर रोहित अग्रवाल, आई एम फ्रॉम द कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इन द फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना। So today we will be organizing this camp for all the various patients. So we will be seeing the various cardiology patients and also we have orthopedician doctor along with us. So mainly the purpose of these camps is mainly we can say to the people who don't know about, they have some cardiac problems. So sometimes the people they simply say that हमें तो सिर्फ थकान रहती है and हमें सिर्फ कभी कभी सांस चढ़ता है। So these camps they sort of pick those patients from the general population because यहाँ पे patients नहीं, यहाँ तो normal लोग आएंगे जिनको थोड़ी बहुत ही कोई शिकायत है। So they pick those patients and they eventually, so if we start the treatment early in these patients, so they have a longer life expectancy and longer better cardiac health. So that is the purpose of these camps actually. So, तो सर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लेकर लोग आपके पास आ रहे हैं अभी, मतलब मेडिकल कैंप? देखो of course I am from a cardiology department, but yes, because this is a typical like tropical season, so mainly fever aa gaya, cough and all those things, yes they are usually there, and of course diabetes and hypertension is there. But in the cardiac problem there are some patients with the subtle features of the cardiac failure, the subtle features of the some impending heart attacks, maybe impending heart attack when the heart is not pumping properly. So these kind of patients they usually have. So we have ECG facility over here. So we'll see and we'll try to pick like patients early before they present with the disease. So these is the basic purpose of these camps. सर आप हार्ट स्पेशलिस्ट हो, तो हमारी ऑडियंस को कुछ हार्ट के रिलेटेड मतलब प्रिकॉशंस रखने के लिए या कुछ बताना चाहेंगे कि आप अपने हार्ट का ध्यान इस तरह रख सकते हैं? So in a cardiology what I will recommend to everyone is the most important point is to first of all dietary preventions. So all these fatty items, of course fats, some fats are good for the body, but our Indian diet is very high in fats and very high in salt. So the most important thing, एक चीज़ जिससे
बहुत लोगों को साइमल्टेनियसली फ़र्क पड़ सकता है. दैट इज़ अ चेंज इन द डाइटरी हैबिट्स. Of course, other than that, 30 minutes of exercise for 5 days a week minimum is recommended. So exercise does not mean you have to go to gym and you have to pick up the weights. So the exercise is simply you have to even a brisk walk, 30 minutes of brisk walk. Just wake up in the morning, have a brisk walk, just 30 minutes 5 days a week, nothing. And dietary prevention. This is the one thing which can eventually increase your life expectancy a lot. Like these simple things. And if you have any features, any palpitations, धड़कन तेज हो रही है और कभी सांस चढ़ रही है, of course visit a cardiologist. So early treatment, they have very good role for the cardiac health actually. तो हमारे साथ ऑर्थोपेडिक यानी कि हड्डियों के डॉक्टर भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं. सर बहुत बहुत स्वागत है पंजाब के. सर आपका नाम? डॉक्टर देवेंद्र. तो आज के मेडिकल कैंप के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए. हाँ, आज का मेडिकल कैंप बेसिकली हमने अराउंड बोन्स और हेल्दी जॉइंट्स के अराउंड किया है, जिसमें बेसिक पर्पस हमारा पेशेंट्स को टीच करना कि हम आपके जोड़ों जिसमें घुटने के जोड़, चूल्हे के जोड़, नी एंड हिप, उनको कैसे बचाना है, शोल्डर के जॉइंट कि कैसे हमने उनको ख़राब होने से बचाना है. द बेसिकली वी आर हेयर टू टीच द पेशेंट्स, हमारा के टीच करना पेशेंट्स को कि हाउ टू हमने अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है. कि बेसिकली द नी जॉइंट जो हमारे नी और हिप जॉइंट जो ख़राब होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली डाइटरी चेंजेस तो है ही हैं इसमें, हमारी डाइट थोड़ी ख़राब होना, जंक ज़्यादा खाना, बाहर का ज़्यादा, बट इट इज़ मोर ऑफ द लाइफस्टाइल जो हमारा आजकल स्टैटिक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इसके कारण हमारे जोड़ ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं. सो इस कैंप का ज़्यादा पर्पस तो बेसिकली पेशेंट्स को एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज करने के रिगार्डिंग ही है. और ऑब्वियसली अगर हमें किस पेशेंट का लगता है कि एक्सरेज के बाद और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद कि नहीं अभी वो जोड़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है एंड दैट्स बियॉन्ड यू कैन से सेविंग, देन ऑब्वियसली वी आर हेयर टू सजेस्ट द पेशेंट अबाउट द सर्जिकल ऑप्शन टू, besides the physiotherapy and exercises which can be done at initial stages. क्या क्या प्रॉब्लम्स पेशेंट्स आपके पास लेकर आ रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है? तो सैडली अभी पहले तो जैसे होता था कि घुटनों के जोड़ और जोड़ों की बीमारी ओल्ड एज पेशेंट में होती थी कि अराउंड आप कह सकते हो 65-70 प्लस पेशेंट्स, बट सैडली अभी काफ़ी यंग पेशेंट्स भी हमारे पास यही कंप्लेंट लेकर आते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में बहुत आवाज़ आती है, मुझे चलने फिरने में बड़ी दिक्कत आती है, चौंकड़ी मेरे को बजदी नहीं हैगी हूँ. बेसिकली सारे पेशेंट्स ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं. अभी शोल्डर जॉइंट के जैसे पेशेंट्स लेकर आते हैं कि नहीं मुझे कंघी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कपड़े वगैरह चेंज करने में दिक्कत आती है, पेशेंट्स वो ऐसी प्रॉब्लम लेकर आते हैं सारे पेशेंट्स. बेसिकली कि हाँ कि दे आर नॉट एबल टू डू द रूटीन एक्टिविटीज़ विच दे शुड डन एज पर देयर एज. डेट्स हाँ वो ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि दे आर नॉट एबल टू डू देयर रूटीन एक्टिविटीज़ वेल. जी. तो हम जैसे जॉइंट पेन्स की बात कर रहे हैं और आपने अभी रूटीन एक्टिविटीज़ की भी बात की है, तो कईयों को ना घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, कईयों की बैक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो पेशेंट क्या कर सकते हैं, मतलब क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? देखो प्रिकॉशंस मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दीज प्रॉब्लम्स आर मोस्टली ड्यू टू लाइफस्टाइल. जो हमारा लाइफस्टाइल हमने अपना ख़राब हो गया हमारा. अभी हम खाना खाते हैं रात को, एवरीबडी इज़ वर्किंग, लेट हो जाता है खाना खाने में. सो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि रात को चलो फैमिली के साथ जब सभी फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हुए तो 8-9 बजे हमने खाना खाया, टीवी देखा और साथ में साथ ही सो गए. ठीक है, इससे क्या होता है हमारा वेट गेन हो रहा है, उसमें घुटनों पे आ रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज कोई कर नहीं रहे हम. वॉक चलो हम करते तो हैं, काफ़ी पेशेंट्स चलो ओरिएंटेड एंड नाउ पेशेंट्स आर ओरिएंटेड एंड दे आर वॉकिंग एंड डूइंग द रिक्वायर्ड एक्सरसाइजेस. But yeah, due to some bad habits, due to late meal at the night, हमारे उन घुटनों के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, हम एक्सरसाइज उसकी प्रॉपरली कर नहीं पा रहे. सो हमारे मसल्स भी वीक हो रहे हैं. जो एक नी हम चलो ऐसे नी जॉइंट को लेकर चलते हैं, इट्स मोर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स बिसाइड्स द बोन्स, इट्स मसल्स टू. ठीक है, हमारे जोड़ जो अभी हम डाइट भी हमारी अच्छी नहीं है, इतनी सैडली अभी प्योरिटी भी हम जो खाना खाते हैं नॉर्मल उसमें भी मिलावट है. सो वी कांट अवॉइड सैडली उसके कारण भी हमारे जोड़ों में ख़राबी आ रही है कि उसमें टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जो बन रहे हैं वो हमारे जॉइंट्स में जब आते हैं दे आर डैमेजिंग द नेचुरल लेयर विच इज़ प्रोटेक्टिंग द नी जॉइंट ना. सो उसके कारण भी है थोड़ा. सो इन सभी के कारण हमारे जोड़ों में ख़राबी आ रही है. सो इनको प्रिवेंट कैसे करना है, एक तो
वी शुड अवॉइड एंड मस्ट अवॉइड द आउटसाइड थिंग्स कि जंक फूड बिल्कुल बंद, वेजिटेबल्स हमारे इंडिया में वी आर ब्लेस्ड विद के हम वेजिटेरियन डाइट हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि अभी द वेस्टर्न पीपल भी हमें फॉलो करके दे आर शिफ्टिंग देयर वेज डाइट्स, सो वी शुड टेक द वेजिटेबल्स, इनकॉर्पोरेट द वेजिटेबल डाइट इन अवर लाइक ट्री, अपना डाइट ट्री है ना, सो उस पर हमें फोकस करना चाहिए। हमें एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, वॉक तो हमें करनी ही चाहिए, वॉक के साथ अगर साइकिलिंग वगैरह हो जाए दैट्स मच एडेड बेनिफिश डू, सो दीज थिंग्स शुड बी डन टू प्रिवेंट द जॉइंट डिसऑर्डर्स। सनी देओल का नहीं, मेरा हाथ है 2.5 किलो का। ये पंजाब केसरी ने प्रमाणित किया है। ये वजह है कुदरत से जुड़ो, कुदरती वातावरण को महसूस करो, अपने बच्चों से प्यार करो। एक दफा का वाक्य है, दुराहा वृद्ध आश्रम में मैं गया तो उसका जो मैनेजर वगैरह था ना मार्केटिंग, वो मेरे साथ जा रहा था। मुझे कहने लगा यहाँ वो चीज़ स्वर्ग है देखने वाली, बहुत सहूलत है। और मैंने उसको 2 बातें कही। मैं कहा जहाँ मेरे पोते की कलकारियों की गूंज मेरे कानों को, उनके कलकारी गूंज की ध्वनि मेरे कानों में ना आए, वो स्वर्ग ही मेरे लिए तुच्छ है। मतलब अगर हम परिवार में ही प्यार पैदा कर रहे हैं तो खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। बाकी कुदरत, शारीरिक एक्टिविटी, फिजिकली एक्टिविटी, शारीरिक श्रम करना जरूर चाहिए, तभी आप सही सेहत पा सकोगे। और मेरी भी घर में कभी भैंस हो जाती है, मैं उसको दिमाग पर नहीं लाता, बाहर पीपल के नीचे बैठ जाते हैं और मन खुश हो जाता है। और एक आप हैं जो आप ही अपने आप को सबसे ज्यादा खुश रख सकते हैं। जैसे एक हाथ है, ठीक है, मैं हूं अंगूठा, ये मेरे परिवार के मेंबर हैं, इनको साथ लेकर चलूंगा तो ये ऐसे ग्रिप बनेगी, अदरवाइज ये अंगूठा मेरा बड़प्पन बेकार हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बाज आश्रम में मेडिकल कैंप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स भी हैं जो दिखाने आए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनको कैसी फैसिलिटीज़ है। नमस्ते मैम, कैसे हैं? तो क्या चेकअप करवाने आए आप? हड्डियां चेक कराना है। तो आपको मेडिकल कैंप के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पे? बाहर च आया ਸੀਗਾ। हाँ जी, तो क्या प्रॉब्लम वगैरह होती है? ਹੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। तो और भी पेशेंट्स हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे या चेकअप करवाने आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर क्या चेकअप करवाने आए हैं? मेरा फ्रैक्चर है मैडम पीछे जॉइंट बोन पे। ठीक है, तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला? एडवर्टाइजमेंट आई थी व्हाट्सएप से भी आई है, साਡਾ ग्रुप बनया है कॉलोनी का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਹੋਈ। इससे पहले आपने कहीं इलाज करवाया कि आप यहाँ पे? सेकंड एडमिट कराया। थैंक यू। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर पंजाब केसरी में स्वागत है। स्वागत। हाँ जी सर, यहाँ पे क्यों आए, क्या चेक करवाने आए? हाँ, घुटने में दर्द है ये, इसका इलाज कराए थे ऑपरेशन, तो दर्द हो रही है साइड में। हाँ, तो यहाँ पे आप सिर्फ घुटनों का दर्द चेकअप कर, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं उसके के, आप अभी डॉक्टर को ही चेक कर? चेक करवाना है। तो इस मेडिकल कैंप के बारे में कैसे पता चला आपको? वो हमारे भाई बताए हैं ना, वो नेता है, बताए कि वहाँ पर लग रहा है, चलिए वहाँ चेक करा लीजिए। फिर तो हमने सुबह आया भगा यहाँ। तो इससे पहले भी आप जैसे कैंप लगते रहते हैं तो वहाँ पे आए हैं के पास? पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ। तो सर आप क्यों यहाँ पे आए हैं, मेडिकल चेक क्या चेकअप करवाने आए हैं? ऐसे मेरे ना गोडों में प्रॉब्लम है, इसलिए चेकअप कराने आए हैं। हाँ जी। इसके अलावा कोई टेस्ट वगैरह भी करवाएंगे कि अभी सिर्फ चेकअप के लिए? टेस्ट उस तो यहाँ कम ही होते हैं, बाहर ही का होते हैं। मैं तो बाहर ही कराता हूँ, ये भी आर्य से कराया मैंने, आर्य जो थे ना, ये वाला टेस्ट। यहाँ दर्द होती थी, मैंने कहा चलो एक बार दिखा लेते हैं यहाँ,
नहीं तो बाहर तो है ही। इसके अलावा आप मेडिकल कैंप में कभी गए हैं, मतलब जैसे यहाँ लगता है तो पहली बार है आपका? ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार यहाँ पर मेडिकल अपना कैंप में चेकअप करवाने आए हैं। तो ऐसे में जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपको भी हेल्थ इशू आता है कोई, अगर आपको भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर चेकअप करवाएं। टाइमली चेकअप करवाएंगे तो आपको कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कैमरामैन वरिंदर के साथ मैं रिद्धि भंडारी, पंजाब केसरी, जलंधर।